Hi everyone, welcome to this session. I hope I am audible and my screen is visible. So if everything is fine, can you just give me a go ahead so that we can start with the session? Uh, I don't know, the PPT should be visible. Join the live workshop. That screen should be visible. So if that is visible, then I think we are good to go. Yeah. If the audio is fine, then I think we are good to go. Yeah, audio is fine. Chalo. Okay, so I'll start it. Then I think okay, just give me a second. I'll just check once. Okay, is this part visible now? The first question should be visible. Yeah. All right. So that was basically the PPT. Anyway, so let's get going with the session. I'll just switch on my camera once. All right. Yeah. So let's get going with the session today. So today's session is going to be on data interpretation, and we have some very interesting sets today. So in fact, both the sets are not very straightforward. I would classify one set as extremely difficult. So that set did not deserve to be solved during the test. That is one. And the second set is such that it's a moderate to difficult kind of a set, right? So many people might have not been able to solve it, but few people would have been able to solve it. Not a set that you had to solve upfront, right? So you had to solve that set once you were done with what maybe three or four sets. वो होने के बाद you could have solved ये वाला set. So वैसे दो sets हैं हमारे पास आज that we are going to look at. And let's get going with the session, right? So the first set is on these two colleges that are there. So Ambi Institute of Engineering and Bambi Institute of Engineering. So AIE and BIE. ऐसे दो colleges हैं हमारे पास and then there is a lot of stuff that is given to us, right? Some 90th percentile overall होना चाहिए and 80th percentile section होना चाहिए and then something happens in terms of BIE which has a different process for selection and so on, and it is followed by some four questions that are there, right? So I'll just show you the four questions that are there. I'll just, yeah. So this is question one. What best can be concluded about the number of candidates sitting for the test by BIE? The next question is a theta question. If the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall is a multiple of 5, so it's an if question, which means there is some condition that is going to happen.
if the number of candidates, again there is some condition based question, which means that we are going to get multiple scenarios here. And then finally, if the number of candidates again. So there are three questions that we can see in terms of ifs, and the first question has options in the form of something or something. तो ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोर और लेस वी नो नाउ दैट देयर कुड बी मल्टीपल केसेस दैट वुड बी पॉसिबल यहाँ पे. And again, that gives me my best guess in terms of question one, that is going to be either 3 or 10 or 7 or 10, right? So again, that's a wild guess at this point in time, but that gives me an indicator that यहाँ पे मुझे certain answer शायद first question में नहीं मिलेगा, and I have to figure out what exactly could be the assumption in my first answer, and only then I will be able to attend my second, third, and fourth questions, right? So that is basically the question. I have left one screen blank here for me to solve this particular thing. तो एक बार देख लेते हैं what exactly is the question and what exactly is going on in this particular context, and then we can have a look at the solution as well, right? Yeah, Monish, yes. So I can see your chat. So if there is anything that you are not able to understand, anybody, and you want some clarity on, you can let me know. Again, I understand there is a match going on today, so that's why the less attendance was expected. But okay, it's fine. It's fair enough. Okay. So those of you who are going to look at the recording of this particular thing, what you can do is you can solve the set beforehand if you haven't done it already, and you can go to the link in the description box below and appear for the test, and then maybe you can have a look at the solution that is going to follow. Right, so let's look at this solution first, and let's look at the set first, and then let's have a look at the solution here. So if you look at the set here, applicants for the doctoral programs of AIE and BIE have to appear for a common entrance test. So there's a test, कोई तो एक test है जो उनको देनी चाहिए. Then this test has three sections here. तीन section है test के अंदर. One is physics, chemistry, and maths. ठीक है. Among those appearing for CET, this common entrance test, those at or above the 80th percentile. So 80th percentile होना चाहिए at least two sections के अंदर. So exactly two sections के अंदर 80 percentile होना चाहिए, या तो तीनों section के अंदर 80 percentile होना चाहिए. तो क्या होगा? एंड ओवरऑल 90 परसेंटाइल होना चाहिए, राइट? तो क्या होगा? दे आर सिलेक्टेड फॉर द एईटी करके एक और टेस्ट है, एडवांस एंट्रेंस टेस्ट बाय द एआईई. सो यू कैन थिंक अबाउट इट एज प्रीलिम्स एंड मेंस काइंड ऑफ थिंग. जो सीईटी है ना वो प्रीलिम्स जैसे कोई टेस्ट है, एंड एईटी इज द मेंस काइंड ऑफ अ टेस्ट. टू क्वालिफाई फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, अगर मेरे को प्रीलिम से मेंस में जाना है, आई नीड टू गेट 80 परसेंटाइल इन एटलीस्ट टू सेक्शंस. तीन में से दो सेक्शन में एटलीस्ट मेरे को 80 परसेंटाइल चाहिए, एंड ओवरऑल आई शुड बी 90th परसेंटाइल और अबव. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा सेट है. एंड यू नो दैट आउट ऑफ द थ्री सेक्शंस 80 80 and something is fine, but overall you need 90th percentile. This is similar to what happens at the CAT as well, right? CAT के अंदर you need to have a minimum score, a minimum percentile in each of the three sections, and overall percentile कुछ होगा minimum. यहाँ पे दो section में भी अगर minimum you have achieved, then you are sorted. Fine. अब ये हो. Now for the 200 candidates, अब ये मेरे को पता है कि 200 candidates हैं. What are these 200 candidates? 90th percentile overall. तो 200 लोग हैं यहाँ पे, 200 people are there who are above the 90th percentile overall. तो ओवरऑल उनको 90 परसेंटाइल मिल गया है, राइट? बट देन सीईटी के स्कोर के अंदर दीज पैरामीटर्स आर नोन. अब 90th परसेंटाइल मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन वुड हैव क्वालिफाइड फॉर दिस एईटी. तो ये 200 में से सब लोग एईटी के लिए क्वालिफाई किया, ऐसा जरूरी नहीं है. these 200 people के अंदर we will have to see how many people have got an 80th percentile in at least two sections. तो अगर उनको 90 परसेंटाइल ओवरऑल है एंड 80 परसेंटाइल इन एटलीस्ट टू सेक्शंस है, ओनली देन विल दे क्वालिफाई फॉर द एईटी. दैट इज ठीक है. अभी यहाँ पे बोला है कि नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस, मतलब तीनों सेक्शन में 80 के नीचे किसी को मिला नहीं है. So what does this mean? People would have got 80th percentile or below 80th percentile in either exactly one section, right? Exactly two sections. दो सेक्शन में 80th परसेंटाइल के नीचे मिल सकता है. Exactly थ्री सेक्शन में 80th परसेंटाइल के नीचे नहीं मिल सकता. I'll write here less than 80. ठीक है? Less than 80 percentile in exactly three sections is not possible. Exactly one section is possible, exactly two sections is possible, and exactly zero मतलब no section में 80th percentile के नीचे is also possible. Fine. So this is what it means. No one is below the 80th percentile in all three sections. तो ये कोई exist ही नहीं करता यहाँ. Then 150 are at or above the 80th percentile in exactly two sections. तो यहाँ पे जो 150 लोग है ना, out of the 200 people who have got 90th percentile, they are above or at the 80th percentile in exactly two sections. मतलब ऐसे भी हो सकता है कि there are some people who are 80th percentile or above in three sections as well. वो भी हो सकता है. बट एग्जैक्टली टू सेक्शन के अंदर जो लोग 80 परसेंटाइल के ऊपर निकाले हुए हैं, दोज आर 150 इन नंबर. तो इसका काउंटर पार्ट एग्जैक्टली वन, मतलब एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में अगर 80 के नीचे है, इट मींस दैट एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट के अंदर 80 या उसके ऊपर है. सो 150 पीपल आर इन दिस पर्टिकुलर. वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेटर, बट अभी के लिए समझ लो कि ये है.
एंड इट वाज वेरी क्रिटिकल दैट इन दिस सेट यू पेड अटेंशन टू ऑल द कंडीशंस दैट वर गिवन टू यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी हो सकती है इफ यू डोंट कन्वर्ट इट इनटू योर लैंग्वेज. So whenever I'm solving a test, I will try to convert numbers, words into my language. या तो हिंदी में करूंगा या तो I'll do it in my mother tongue or in Marathi or whatever. But I will try to convert it into something that I know. ठीक है, and I am very comfortable with following the train of thought. नहीं तो यहाँ पे above the 80th percentile, at or above the 90th percentile, ये सब में you are getting to go, you are going to get confused a lot. Fine. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. The number of candidates at or above the 80th percentile only in P, मतलब 80th percentile only in P, सिर्फ एक ही सेक्शन में 80 percentile के ऊपर है, is the same as those people who are at or above the 80th percentile only in one section, that is C, and the same can be said about the number of candidates at or above the 80th percentile only in M. So P, C, M में जो सिर्फ उसी सब्जेक्ट में जिनको 80 percentile के ऊपर है ना, उनका जो नंबर है that is the same. ठीक है, we'll represent it later, but I'm just reading it. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन पी, मतलब 80 परसेंटाइल के नीचे पी में मिला है. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दोनों में भी 80 परसेंटाइल के नीचे मिला है. इट कुड मीन दैट दीस पीपल माइट हैव गॉट an 80 percentile or above in C. They might have got an 80 percentile or above in M, either or both or none, ऐसे जो भी हो सकता है. ठीक है. Similarly, इसका रेशियो इज टू बिलो 80th percentile in C का रेशियो इज टू 80th percentile और बिलो इन M का रेशियो इज 4:2:1. That has been known to us. नाउ बीआई इज ऑल्सो डिफरेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन. तो बीआई का कुछ अलग ही स्टोरी चल रहा है. एआई क्या करा था, सीईटी लेके उसके अंदर दुन लोगों को टू सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 80 परसेंटाइल के ऊपर है एंड ओवरऑल 90 परसेंटाइल के ऊपर है, उन लोगों को कॉल दे रहा था. ठीक है. बट बीआई, व्हाट डज बीआई डू, कॉल दे रहा था मतलब दे वर सपोज टू गो फॉर द एडवांस्ड टेस्ट. फाइन. अभी बीआई क्या बोलता है, अगर कोई एईटी, एईटी इज द मेंस वाला पार्ट, जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस में अपियर करते थे ना, इफ एनी कैंडिडेट इज अपियरिंग इन द एईटी बाय एआई, बीआई विल कंसिडर द एईटी स्कोर. तो बीआई और मेहनत नहीं करेगा, बीआई बोलेगा बॉस ये एईटी का जो स्कोर है ना, गिव मी दैट स्कोर, आई विल बी फाइन, आई एम ओके विद दिस थिंग, एंड अगेन जो भी मेरा क्राइटेरिया है दैट टाइम. बट क्या प्रोवाइडेड व्हाट, द कैंडिडेट इज एट और अबाउट द 80th परसेंटाइल इन पी. सो बी के पास ना एक बहुत ही, बीआई के पास एक बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरियन है. क्या स्पेसिफिक क्राइटेरियन है भाई, बीआई में किसी को एडमिशन चाहिए तो उसको पी में 80th परसेंट के ऊपर तो होना ही चाहिए. If someone has below 80th percentile in P, that person will not even be considered. कुछ भी हो जाए, मतलब whatever happens, that person is not going to be considered for admission to BI. ठीक है, अगर उसको 80th percentile in P नहीं है. Then any other candidate at or above the 80th percentile in P in CET, but who is not eligible for AET. तो उसको P में 80th percentile के ऊपर था, but वो AET के एलिजिबल नहीं है. मतलब क्या हो गया, this person has got 80th percentile on or above in only P. अगर उसको एक और सेक्शन में 80th परसेंटाइल के ऊपर मिल जाता ना, तो फिर उसका काम निकल जाता. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. द अदर थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू से इज जिनको 90 परसेंटाइल के नीचे है, दोस काइंड ऑफ पीपल, राइट. सो बीआईई के अंदर दो टाइप के लोग हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वन, 80th परसेंटाइल प्लस इन पी बट नॉट इन एनी अदर. ठीक है, बट नॉट इन एनी अदर सेक्शन और सब्जेक्ट. एंड सेकेंड थिंग, दोज हु आर नॉट एलिजिबल, तो 80th परसेंटाइल के ऊपर है, दिस इज फाइन, बट नॉट एलिजिबल फॉर एआई. मतलब क्या हो गया, इसका ओवरऑल जो है ना, दैट इज लेस देन 90%. ठीक है, मेक सेंस. तो ओवरऑल या तो 90 परसेंटाइल के ऊपर होगा या तो 90 परसेंटाइल के नीचे होगा, मोर और लेस. ठीक है. अगर 90 परसेंटाइल या उसके ऊपर है, देन दिस पर्सन इज एनीवे एलिजिबल. जो एआई वाला ब्रैकेट है उसके अंदर तो वो मिल जाएगा अपने को वेन डायग्राम में किधर तो भी. बट अगर 90 परसेंटाइल के नीचे है तो फिर देन दैट पर्सन विल गो टू बीआईई का टेस्ट इफ दैट पर्सन हैज 80 परसेंटाइल और अबव इन पी. दैट्स. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 400 कैंडिडेट्स हैं दिस ईयर हु आर एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन पी. ये हो जाएगा. और ये सारे लोग जो एलिजिबल नहीं थे या फिर एआई में एईटी के लिए क्वालिफाई हो गए, देन दिस पीपल, या एईटी के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, देन दोस पीपल विल बेसिकली एंड अप गोइंग फॉर अ सेपरेट टेस्ट बाय बीआई. दैट्स बेसिकली व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड, बट लॉट ऑफ 80% एंड अबव, 90% एंड अबव, दोस थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व. अब एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, देन लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इट इज. तो अभी तक समझ में आ गया होगा that we are talking about exactly two subjects, at least one subject, exactly three subjects, और हर एक के अंदर 80% वैकेंसी नहीं है. तो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा वेन डायग्राम वाला. ठीक है. सो दिस इज अ वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन. हाउ डू वी फिगर इट आउट, बिकॉज वी नो, राइट,
क्योंकि 3 सेक्शन है, राइट? 3 सेक्शंस इज व्हाट हैज बीन गिवन टू अस। वी नो दैट ओनली P बोला है, ओनली C बोला है, ओनली M बोला हुआ है, दैट इज फाइन। वी नो दैट एग्जैक्टली 2 सेक्शंस बोला हुआ है, ऑल 3 सेक्शंस बोला हुआ है, एंड बिलो 80%। ये सारी चीजें विल पॉइंट टुवर्ड्स द फैक्ट दैट वी आर डीलिंग विद अ वेन डायग्राम वाला। अभी वेन डायग्राम में हमको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट थिंग दैट वी हैव बीन टोल्ड टू अस, फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन टोल्ड टू अस इज दैट 200 कैंडिडेट्स को 90th परसेंटाइल के ऊपर है, ठीक है? 90th परसेंटाइल और उसके ऊपर है, वन ऑफ दिस टू, फाइन। अदर थिंग दैट वी हैव बीन टोल्ड इज दैट ये AIE या AET के लिए जाने के लिए क्या करने की जरूरत है? 80 परसेंटाइल के एट और अबव के लेवल पे होना चाहिए। यू शुड बी एट द 80th परसेंटाइल और अबव। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक मस्त वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, 3 फैक्टर वेन डायग्राम बनाएंगे, 3 सर्कल्स वाला, ठीक है? तो यहाँ पे 1 2 3 सर्कल्स वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। नाउ नॉर्मली व्हाट विल पीपल डू? पीपल विल से PCM लिख देते हैं, बट PCM क्या? एंड देन यू गेट कंफ्यूज कि भाई ये 80 परसेंटाइल के ऊपर हुआ था कि वाज दिस बिलो 80 परसेंटाइल और वाज दिस 80 परसेंटाइल एंड सो ऑन। सो वी विल राइट द कंडीशन एज वेल। दिस इज ऑफ ऑल द पीपल हु आर 80 परसेंटाइल और अबव इन P। These are all the people who are 80 percentile or above in C, and यहाँ पे 80 percentile और above in M, ठीक है? तो ये 3 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जिनको भी यहाँ पे 80 परसेंटाइल के ऊपर है ना फिजिक्स के अंदर, वो सब ये सर्कल में आएंगे। यहाँ पे जो भी आएंगे, दोज पीपल विल हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 परसेंटाइल इन C, एंड इन दिस सर्कल देयर विल बी ऑल दोज पीपल हु वुड हैव 80 परसेंटाइल और मोर इन M। सो ये 3 हमारे सॉर्ट हो गए चीजें, ठीक है? दीज थिंग्स आर डन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन गिवन टू अस? हमको बताया गया है कि 200 कैंडिडेट्स है जो 90 परसेंटाइल एंड अबव। ये पूरा का पूरा जो वेन डायग्राम बनाया ना, this is of people who are at greater than or equal to 90 percentile ओवरऑल, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा मैंने एक डाल दिया एक रेक्टेंगल के अंदर। दिस रेक्टेंगल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस पीपल हु आर 90 परसेंटाइल और अबव ओवरऑल, फाइन। तो ये बन गया यहाँ। नाउ वी हैव बीन टोल्ड दैट ऐसे 200 लोग हैं, तो ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल के अंदर देयर विल बी 200 स्टूडेंट्स हु विल बी प्रेजेंट। अभी अगर इफ आई जस्ट हैव टू टेल यू व्हिच सेक्टर इज व्हाट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अभी ये पूरे रेक्टेंगल के अंदर जिसको भी पिकअप करोगे, दोस पीपल विल बी 90 परसेंटाइल या उसके ऊपर ज्यादा होगा हमको ओवरऑल, राइट? अब उसके अंदर इफ यू गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे जिधर मैं बैठा हूं, आई विल जस्ट पुट द लेजर पॉइंटर। Yeah. So if I'm looking at this particular area, जहां पे मेरा पॉइंटर है, this area is all those people who have gotten 80 percentile or above in only physics। उनको सिर्फ P के अंदर 80 परसेंटाइल या उसके ऊपर मार्क्स मिले हुए हैं। Does this mean that these people are eligible for AIE का टेस्ट? Not really, right? क्योंकि उनको सिर्फ P के अंदर 80 परसेंटाइल के ऊपर मिला है। These people are the ones जिनको सिर्फ C के अंदर 80 परसेंटाइल के ऊपर मिला है। Again, these people are not eligible for that AET वाला टेस्ट। M वाले 80 परसेंटाइलर्स are again not eligible। ये वाला अगर ब्लॉक देखेंगे जिधर आई एम पॉइंटिंग राइट नाउ, दिस इज द सेट ऑफ पीपल जिनको P में 80 परसेंटाइल या उसके ऊपर मिला है, C में 80 परसेंटाइल या उसके ऊपर मिला है, बट M में बेचारों को 80 परसेंटाइल नहीं मिला है। बट डज दैट मीन दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर AET? नो, दे आर एलिजिबल ना, क्योंकि AET में एलिजिबल होने के लिए क्या चाहिए? 90 परसेंटाइल ओवरऑल होना चाहिए एंड 80 परसेंटाइल एटलीस्ट 2 सेक्शंस में होने चाहिए। तो ये पीपल आर एलिजिबल फॉर AET, ये पीपल आर एलिजिबल, ये पीपल आर एलिजिबल, and ye people will definitely be eligible क्योंकि this is basically the set of all the people who have got 80 percentile or above in all 3 sections and 90 percentile or above overall। ये मतलब एकदम बेस्ट सेट है जिसमें सब सेक्शंस में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर है, तो इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। ये लोगों को भी कोई टेंशन नहीं है बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशंस दैट राइट। ये 3 लोग जो है ना, इनके लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज दे हैव नॉट मैनेज टू again overcome the criterion that has been defined by AIE, ठीक है? So this is basically what the diagram means। अभी काम करते हैं, let's go to the set again and let's try to write। तो यहाँ पे 200 तो लिख दिया हम लोगों ने। अभी हमको बताया गया है कि no one is below the 80th percentile in all 3 sections। अब ये 80 परसेंटाइल के ऊपर फिजिक्स में है, ये 80 परसेंटाइल के ऊपर केमिस्ट्री में है, ये 80 परसेंटाइल के ऊपर मैथ्स में है। सो दिस बेसिकली जो बाहर का पार्ट है ना, दिस आउटर पार्ट, सो सॉरी, ये जो बाहर का पार्ट है ना, दिस आउटर पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज सपोज टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये वो लोग हैं जिनको फिजिक्स में भी 80 परसेंटाइल के ऊपर नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, मैथ्स में भी नहीं है। सो दीज आर द पीपल हु आर नोवेयर, हु हैव नॉट गॉटन 80 परसेंटाइल इन इवन वन सेक्शन और वन सब्जेक्ट। बट यहाँ पे बोला गया कि ऐसा कोई भी नहीं है जिनको 80 परसेंटाइल के नीचे इन ऑल 3, तो ये तो जीरो बन गया, विच बेसिकली मीन्स दैट ये तीनों सर्कल में मिला के आई एम गोइंग टू गेट 200, ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी क्या करेंगे इसके अंदर, 150 ये वाला पार्ट वी हैव टेकन।
150 आर एट और अबाउट द 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस। अब एग्जैक्टली 2 सेक्शन जो होंगे ना वहां पे 150 लोग हैं। तो ये और ये लेट्स से दिस इज ए बी सी। सो आई कैन से फॉर श्योर दैट ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ना वो 150 होगा। क्यों? क्योंकि ए इज द सेट ऑफ पीपल जिनको एग्जैक्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 के ऊपर है, सी इज केमिस्ट्री और मैथ्स में 80 के ऊपर है, बी इज फिजिक्स और मैथ्स में 80 के ऊपर है। फाइन, सो दैट हैज बीन टेकन केयर। ये 150। यहाँ पे ये बोला गया कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबाउ द 80th परसेंटाइल ओनली इन पी। सो ओनली इन पी के अंदर जिनको 80 परसेंटाइल एंड अबाउ है, दैट इज द सेम एज ओनली सी, दैट इज द सेम एज ओनली एम। तो हम लोग काम करते हैं सबको एक्स करके लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों एक्स हो जाएंगे। और क्या बताया गया है, तो ये वाला पार्ट भी डन है। यहाँ पे क्या बोला है, बिलो 80th परसेंटाइल इन पी इज टू बिलो 80th परसेंटाइल इन सी इज टू बिलो 80th परसेंटाइल इन एम। तो क्या मतलब बना इसका, बिलो 80th परसेंटाइल इन पी, राइट, फर्स्ट पी है ना। सो बिलो 80th परसेंटाइल पी मतलब ये सब तो 80th परसेंटाइल है उसके ऊपर है, तो बिलो कौन हो गए, टू सी, सी प्लस 2x हो गए। तो ये और ये तीन लोग हैं जिनको फिजिक्स के अंदर 80 परसेंटाइल नहीं है फॉर श्योर। सो आई कैन से दैट सी प्लस 2x इज टू, अगेन केमिस्ट्री के बाहर जो है जिनको केमिस्ट्री में 80 परसेंटाइल नहीं है वो लोग, वो कौन है, बी प्लस 2x, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इज टू लास्ट वाला मैथ्स के अंदर जो नहीं है, ए प्लस 2x। अब इसका वैल्यू क्या बताया गया है, दिस इज 4:2:1। ये अपने को बता दिया यहाँ पे, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस दैट हैव बीन, सो सॉरी, दीज आर द कंडीशंस दैट हैव बीन गिवन टू अस। अगेन ये वाला भी हमने यूज कर लिया। फाइन, नाउ वी हैव टू फिगर आउट। अब इससे तो क्या पता चल रहा है, मेरे पास यहाँ पे ए बी सी एक्स 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 ये सारे बहुत सारे रैंडम मेरे पास वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट आई नो। आई हैव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ सी प्लस 2x बी प्लस 2x ए प्लस 2x, वो भी दिया हुआ है। बट मेरे पास इक्वेशन कितना है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 3 रेशियो है बेसिकली, राइट। 2 इक्वेशन में बना सकता हूँ क्योंकि तीसरा तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा पहले 2 इक्वेशंस पे ही। I have 4 variables, 2 equations. Is there any way I'll be able to get one unique answer for this? Not really ना। तो मेरे को एक आंसर इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि जितने मेरे पास वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशंस तो एटलीस्ट मेरे पास होने चाहिए। अगर उतने इक्वेशंस मेरे पास नहीं है तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी वेरिएबल और एनी आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन। ये मेरे को एक समझना है पहली बात। फाइन, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यू यहाँ। दूसरा मेरे को यहाँ पे क्या पता चल रहा है, वन थिंग आई कैन डू हियर इज आई कैन से दैट सी प्लस 2x जो है ना उसको हम लोग 4k ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 4:2:1 है। सो अगर ये 4k है तो b प्लस 2x जो होगा ना दैट विल बी 2k एंड a प्लस 2x जो होगा दैट विल बी जस्ट k। ये हो जाएगा। फाइन, सो दिस पार्ट इज टेकन केयर। यहाँ पे ये अपने को मिल जाता है, राइट। नाउ व्हाट एल्स कैन बी, वी नो दैट यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी मेरे को मिल जाएगा, इधर a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा और यहाँ पे ये x और 4k 2k का कुछ तो कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो दैट इज वन थिंग दैट वी विल बी एबल टू फिगर आउट। सो व्हाट विल वी बी एबल टू फिगर आउट फ्रॉम दिस, अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2x मतलब कितना हो गया, 6x हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 7k, ये हो जाएगा। बट a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी तो 150 है। सो 150 प्लस 6x इज इक्वल टू 7k। ये अपने को एक एक्सप्रेशन मिल जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस। व्हाट एल्स कैन वी थिंक अबाउट इन दिस केस, एक और चीज इसके अंदर यू कैन थिंक अबाउट इज, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी 150 है। वी ऑल्सो नो दैट बाकी सारी चीजें मिला के ना 50 बन रहा है। सो अगर मैं इसको d ले लेता हूँ, लेट्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स में 80 परसेंटाइल अबाव को मैं d ले लेता हूँ, लेट्स। सो कैन आई ऑल्सो से दैट b प्लस 3x विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, सो d प्लस 3x को मैं 50 बोल सकता हूं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो 150 है और ये सारी चीजें मिला के 200 बन रहा है। अनदर वे ऑफ अराइविंग एट दिस इज यू सिंपली से a प्लस बी प्लस सी प्लस d प्लस 3x इज 200। वो उससे अपने को मिलेगा यही चीज फिर से। फाइन, सो नाउ व्हाट हैव आई गॉट, आई हैव गॉट दिस एंड आई हैव गॉट दिस। तो क्या हो गया, मेरे पास दो इक्वेशन है बट तीन वेरिएबल है, x d और k, तीन वेरिएबल है मेरे पास, राइट। नाउ वी विल ट्राई टू सी कि x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल, वो क्यों देखना है अपने को, बिकॉज इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, what best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BIE who were at or above the 90th percentile overall in CET। तो क्या होना चाहिए, 90th percentile overall in CET होना चाहिए to qualify for to appear for the BIE and you should have greater than or equal to 80th percentile in P। तो फिजिक्स में मेरे को 80th परसेंटाइल या अबव होना ही चाहिए तो ही मैं बीआईई के लिए बैठ सकता हूँ। ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट।
सो बीआई के अंदर इफ एनी कैंडिडेट इज अपियरिंग इन द एईटी बाय एआई, बीआई कंसीडर्स देयर एईटी, क्यों कभी करेंगे अगर उनको 80th परसेंटाइल और अबव इन पी है तो, राइट, एंड ऑल्सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मतलब एईटी के एलिजिबल है तो अलग स्टोरी है, बट यहाँ पे एईटी का फाइनल स्कोर करेंगे अगर उनको 80th परसेंटाइल या अबव है इन पी, फाइन, सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो यहाँ पे वी आर सेइंग दैट सेपरेट टेस्ट बीआई के लिए बैठेंगे 80th परसेंटाइल और अबव इन सीईटी, फाइन। सो 80th परसेंटाइल इन पी के ऊपर भी होना चाहिए, विच बेसिकली मीन दैट वी आर गोइंग टू लुक एट दिस नंबर। तो मेरे को एक्स के वैल्यूज क्या क्या चाहिए वो देखना है मेरे को, ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे आ गया ना तो लोग ऑलरेडी एआई के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, फाइन। सो ऑलरेडी दे वुड हैव गॉट 80th परसेंटाइल अबाउट 90th परसेंटाइल इन टू सेक्शंस, ये सारी चीजें हो जाएंगी, फाइन। तो यहाँ पे अपने को एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं बीआई का क्या चीज है यहाँ पे हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे बोल रहे हैं एईटी के लिए करेंगे एईटी यूज बाय एआई फॉर दी फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है सीईटी के बारे में। यहाँ पे वी हैव बीन टोल्ड दैट डिफरेंट प्रोसेस इफ एनी कैंडिडेट इज अपीयरिंग इन दी एईटी बाय एआई, BI considers their AET score for final selection, provided the candidate is at or above the 80th percentile in P, ये होना चाहिए। Any other candidate at or above the 80th percentile in P, but who is not eligible for AET, not eligible for AET मतलब क्या हो गया, उनको सिर्फ एक ही सेक्शन में 80th percentile के ऊपर, फाइन। These people are required to appear in a separate test by BI। तो separate test by BI किसको देना है, एनी अदर कैंडिडेट जिनको 80th परसेंटाइल और अबव सीईटी में है बट वो एईटी के लिए एलिजिबल ही नहीं, फाइन। एटी के लिए एलिजिबल कब नहीं होंगे वो लोग, जब उनको सिर्फ एक सेक्शन में 80th परसेंटाइल के ऊपर होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस केस। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें ट्रायल एंड एरर आ जाता है, बहुत सिंपल सा ट्रायल एंड एरर करना है अपने को। अब ये वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे 150 प्लस 6x इक्वल्स 7k, आई राइट इट हियर फॉर आवर सिंप्लिसिटी। 7k इज 150 प्लस 6x। Now if you have seen our earlier sessions, क्या करना है इसके अंदर, x का वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट करते जाओ, you will be able to get something। इफ x इक्वल टू जीरो, लेट से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर x को मैं जीरो लेता हूं 7 के 150 बन जाता है, बट 150 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो अपना आंसर नहीं है। इफ x इक्वल टू 1, 156, 156 बाय 7 नहीं होगा, 154 हो जाएगा 7 से डिविजिबल, 156 तो नहीं होगा। इफ x इक्वल टू 2, 162, 162 भी 7 से नहीं जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा मेरे पास, 23 7 और 161, राइट, तो वो भी नहीं होगा। x इक्वल टू 3 अगर लेते हैं तो मिल जाता है 168, एंड 168 इज नथिंग बट 24 इंटू 7। तो यहाँ पे किसके लिए सेटिस्फाई होगा, x इक्वल टू 3, तो आई जस्ट पुट k एंड x यहाँ पे। x इक्वल टू 3 के लिए दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई, बट अगर x 3 हो गया तो 7k हो जाएगा 168, which basically means k will be 24 in that case. So k 24 and x 3 is one solution. Now if you know the basics of linear equation simultaneous solving, you will know that x का जो जंप होगा ना वो k के कोएफिशिएंट के हिसाब से होगा, और k का जो जंप होगा ना वो x के कोएफिशिएंट के हिसाब से होगा। So what will be the next value of x that will satisfy? We have to push 7 positions away from 3, मतलब एक 7 है ना, यहाँ पे 7k है, तो x 7 position से आगे चला जाएगा। So x equal to 10 will be the next case that will be possible. अगर मैं x को 10 ले लेता हूं तो 210 बन जाएगा, k will be 30, k will jump by 6, x will jump by 7, next will be 17 and 36, next will be 24 and 42 and so on। बट यहाँ पे d plus 3x 50 है ना, तो अगर d plus 3x 50 है, x 3 हो सकता है, x 10 हो सकता है, बट x 17 नहीं हो सकता, because if x is 17, 3x will be 51, d will be -1, -1 तो नहीं हो सकता, 24 भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो x has only two possible values 3 और 10। अभी मेरे पास और कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए, I have only these two equations that exist, right? So I can say that x will be either equal to 3 or it will be equal to 10। So in this particular context, the correct answer will be option A, either 3 or 10। ठीक है, I hope all of you understood this. If no, if someone has not understood this, just let me know। I'll just try to wait here for 15-20 seconds क्योंकि इसके आगे के सारे ऑटो पायलट पे हो जाएंगे हमारे, but this was the important part। So if someone has any doubt in this one, let me know, otherwise I will move on to the next question। ऑलराइट, चलो we'll move on to the next one। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and also at or above the 80th percentile in all three sections in CET is actually a multiple of 5. ठीक है, 80th percentile in all three sections in CET is actually a multiple of 5. तो अब यहाँ पे all three sections में कौन थे? D थे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि D जो है ना वो 5 का मल्टीपल है. नाउ इफ D is a multiple of 5 then you can say that X is also a multiple of 5 ना, क्योंकि 50 ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है. If D is also a multiple of 5, X automatically has to be a multiple of 5. So I can say for sure that X will be equal to 10 in this case as well. So question 2 में अगर देखेंगे ना, the assumption is X will be equal to 10. Why is X equal to 10? क्योंकि अगर X 3 हुआ let's say, तो 3 3 are 9, D 41 हो जाता है ना, तो D is no longer a multiple of 10 or 5 sorry. But अगर X 10 हुआ then D will be equal to 20 which is a multiple of 5. ठीक है, so question 2 के लिए the condition tells us that X is equal to 10. तो मेरे को क्या करना है, who are at or above the 90th percentile overall, मतलब वो टेबल के अंदर ही हमको देखना है, and at or above the 80th percentile in both P and M in CET, राइट. P and M में उनको 80th percentile है उसके ऊपर होना चाहिए. P या M मतलब क्या हो गया, B और D, तो मेरे को B plus D की वैल्यू चाहिए if X equal to 10 and consequently K equal to 30. ठीक है, तो B plus D चाहिए. अब D तो मेरे को पता चल गया, अगर X 10 है तो यहाँ पे D will be 20. So D is 20. That part is known. Let's look at what is the value of B. वो कैसे मिलेगा? B plus 2x is 2k ना. If B plus 2x is 2k, k is 30. 30 2s are 60. 60 minus 2x, 60 minus 20 करेंगे तो B का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 40. So इसका टोटल बन जाएगा 60. ठीक है, so B plus D का वैल्यू is going to be 60 in this particular case. तो यहाँ पे the correct answer is going to be 60. Okay, I hope this is clear. We'll move on to the next one. If there is any doubt, let me know in the chat. But this one was the easier one if you have understood the previous theory entirely. अभी यहाँ पे क्या बोला है, if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and at or above the 80th percentile in all three sections in CET is actually a multiple of 5, मतलब exactly वही condition है, then how many candidates were shortlisted for the AET by AI. अब AET के लिए कौन शॉर्टलिस्ट होगा, जिनको 80 परसेंटाइल इन दो सेक्शन है, या तो मतलब उनको 80 परसेंटाइल एंड अबाउ तीनों सेक्शन के अंदर है. तो आई बेसिकली हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D फॉर द एग्जैक्ट सेम कंडीशन जो मेरे को क्वेश्चन 2 में दिया हुआ था. ठीक है, अभी D का वैल्यू तो मेरे को पता है 20 है, B का वैल्यू 40 इज व्हाट वी हैड फाउंड आउट. अभी लेट्स फिगर आउट द वैल्यूज फॉर A एंड C इन दिस पर्टिकुलर केस. अब A क्या है, K माइनस 2x, सो 30 माइनस 20, तो A का वैल्यू बन जाएगा 10 इन दिस केस आई थिंक. एंड C का वैल्यू अगर देखूंगा यहाँ पे दैट विल बी 4k माइनस 2x, मतलब 120 माइनस 20 ये कुछ बन जाएगा 100 आई थिंक. Right, so this is basically what we are going to get in this particular context. And yeah, and that's why if you just add all these four numbers you are going to get the answer which I think is going to be 170. ठीक है, so question number 3 का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है 170 बन जाए. Same thing we have done, we just figured out what was the value of A, B, C and D all together and then we got the answer as 170. ठीक है, that was question 3. अभी क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट. इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबाउट द 90th परसेंटाइल ओवरऑल, मतलब वही बॉक्स के अंदर, एंड आल्सो एट और अबाउट द 80th परसेंटाइल इन पी इन सीईटी इज मोर देन 100. ठीक है, तो पी के अंदर जो है ना दैट इज मोर देन 100 अगर है, तो हाउ मेनी पीपल हैड टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर बीआईटी, ये बोला गया है. फाइन, सो अगर 80th परसेंटाइल इन पी वाला जो सर्कल है, दिस सर्कल, राइट, सो दिस एंटायर सर्कल दैट हैज बीन गिवन टू अस, आई यूज अ डिफरेंट कलर हियर, लेट्स सी. So this entire circle that we have here ना, this entire circle is greater than 100. ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा सर्कल इज ग्रेटर देन 100 देन वी हैव टू फिगर आउट हाउ मेनी पीपल हैड टू सिट फॉर बीआईई का टेस्ट. फाइन, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन वी विल डू द सेम थिंग. व्हाट डू वी हैव टू फिगर आउट, a प्लस b प्लस d प्लस x जो है ना वो 100 से ऊपर है, दैट इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड, राइट. सो दैट पार्ट इज समथिंग दैट वी हैव बीन टोल्ड हियर. बट देन अगेन वी हैव सम कंडीशन दैट इज प्रेजेंट, राइट, 100 के ऊपर होना चाहिए. So because we have these two conditions that we have here already, we'll try to figure out what happens in terms of A, B, D अगर मैं उनको K और X के फॉर्म में लिखूं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, A is nothing but K minus 2X. So I'll write this as K minus 2X plus B क्या है 2K minus 2X plus C क्या है, sorry D क्या है, D is 50 minus 3X plus X has to be greater than 100. ये अपने को दिया हुआ है. Fine, that has been given to us.
Now, what does this mean? If you add the entire thing, you will get k plus 2k, that is 3k. I just write 3k here, minus 2x, minus 4x, minus 7x plus x, minus 6x should be greater than 100. So 3k minus 6x should be greater than 100. ये अपने को दिया हुआ है, right? तो यहाँ पे ये अपने पास k और x के values थे. Now let's try to see what all values fit into this, right? So 3k, first case में अगर देखते हैं ना, 3k, 24 3 जा 72. 72 minus 18 अगर करूंगा तो मेरे को greater than 100 तो definitely नहीं मिलने वाला, राइट. सेकेंड केस देखते हैं, 30 एंड 110 लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है. सो 3k माइनस 6x शुड बी ग्रेटर देन 100, राइट. आई होप आई एम राइट. सेकेंड केस के अंदर 3 into 30 इज 90 एंड 6 into 10 इज 60, तो ये भी ग्रेटर देन 100 नहीं होगा, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन दिस केस. तो अभी एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं. आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग. 90th percentile overall and also at or above the 80th percentile in P in CET is more than 100. Fine. So this is fine. I'll just check the calculation once. So a plus b plus d plus x, this entire thing should be greater than 100. A ka value is nothing but k minus 2x, b ka value is 2k minus 2x, c ka value, d ka value is 50 minus 3x. Yeah, I hope this is fine. All right, yeah. And plus x as it is, this will be greater than 100. So k plus 2k is 3k minus 7x plus x is minus 6x is greater than 100. Fine. So this part is taken care of. अभी ये पार्ट अगर यहाँ पे है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ k एंड x. ठीक है. नेक्स्ट वाले में क्या देखें, तो ये दो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है. 3k minus 6x greater than or less. Okay. I just check this once. तो विल डू दी अदर पार्ट एज वेल यहाँ पे पहले. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 400 कैंडिडेट्स हैं दिस ईयर हु आर एट और अबाउट द 80th परसेंटाइल इन पीए बोला हुआ है. तो नाउ दोस पीपल हु आर नॉट एलिजिबल टू टेक द एईटी, दिस पीपल विल हैव टू गो फॉर अ सेपरेट टेस्ट. दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, राइट. सो ये 400 कैंडिडेट्स से नीचे मेरा आंसर होगा. फाइन, आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट एंड देन आई विल बी एबल टू मैनेज दिस पर्टिकुलर, राइट. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट चेक माय कैलकुलेशन वंस एंड देन वी विल गेट गोइंग अगेन. Yeah. So 3k minus 6x is greater than 100 minus 50. तो ये 50 होना चाहिए यहाँ पे. This 50 will go to this side and that's why 3k minus 6x will be greater than 50. अभी यहाँ पे k तो 24 है, तो 24 is a 72. 72 minus 3 6s are 18 will give me 54. So that part is fine. ये चलेगा. 30 अगर लेता हूँ मैं k को, 33 are 90. 90 minus 60 करेंगे तो 50 के ऊपर नहीं जाएगा. So I know for sure that k is 24 and x is 3. ठीक है. So k 24 बन जाएगा, x 3 बन जाएगा. That will be something that will again satisfy our answer. तो यहाँ पे x 3 हो जाता है, right? And we also know that this is k is 24. Let's say. Fine. Now what are we supposed to figure out? We are supposed to figure out how many people will have to take that test by BIE, right? So ये वाला question, this one. How many people are supposed to appear for the separate test for BIE? तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे. एक तो मतलब जिनको ए में शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ, दीज पीपल, any other candidate at or above the 80th percentile in P but who is not eligible for the AET is required to appear in a separate test to be conducted by BIE. ये वाला है. अब यहाँ पे 400 तो P में ज्यादा है करके बताए गए हैं. तो अब जो लोग AIE के लिए क्वालिफाई ही नहीं हुए, लेट्स से CET के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, दोज पीपल विल हैव टू अपीयर फॉर BIE सेपरेटली. तो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A plus B plus D plus X इन दिस पर्टिकुलर. ठीक है. तो अब यहाँ पे a plus b plus d plus x निकालने का है. अपने को पता है कि यहाँ पे दिस विल बी नथिंग बट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के a इज k minus 2x. तो k यहाँ पे कितना बना 24 और 2x इज 3 2 6, तो ये बना 18. सो आई जस्ट राइट इट हियर बिकॉज इट्स द लास्ट क्वेश्चन. a विल बी नथिंग बट 18, राइट. k minus 2x 24 minus 6. b will be nothing but 2k minus 2x. So 48 minus 6 will become 42. तो b का वैल्यू 42 बन जाएगा. d is nothing but 50 minus 3x, 50 minus 9, तो d का वैल्यू बन जाएगा 41. Now if I look at the total of all of these, I am going to get 42 plus 41, that is 83. 83 plus 18, 83 plus 18 कितना हो गया 101 हो गया, राइट. सो 101 हो गया एंड 3 is 104. तो p जो है ना वो 104 है. अपने को पता है कि 400 पीपल वेयर देयर जिनको p में 80 परसेंटाइल के ऊपर मिला है, बट ओनली 104 पीपल क्वालिफाइड हियर. तो बाकी लोगों को ओवरऑल 90 परसेंटाइल नहीं है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से.
तो 400 में से अगर 104 चले गए, इफ यू रिमूव 400 में से 104, सॉरी 400 में से 104 अगर निकल जाएगा, तो यू आर गोइंग टू गेट 296. I'll just write it below. 296. ठीक है, ये 296 लोगों को तो बीआई के लिए अपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो लोग सीईटी के लिए एलिजिबल नहीं थे. ऑल्सो दोज पीपल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर एईटी, जो मेंस के लिए एलिजिबल नहीं थे, मतलब कौन, जिनको सिर्फ पी में 80% के ऊपर मिला था, बाकी दो सेक्शन में तो मिला ही नहीं है. एंड एलिजिबिलिटी क्या था एईटी के लिए, कि एटलीस्ट दो सेक्शन में अपने को 80% मिलना चाहिए. सो दीज थ्री पीपल विल ऑल्सो हैव टू अपियर फॉर द टेस्ट बाय बीआई. तो 296 प्लस 3 करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर एज 299 here, and that's why the correct answer here will be option A in this particular context. ठीक है, I hope you have got the answer to this one. If there is any doubt or something you are not understood, let me know. I'll wait for another 20-30 seconds and then we'll move on to the next set. Next set looks very difficult, but एक बार समझ में आ गया लॉजिक क्या है, it's not very difficult set, but एग्जाम के अंदर वो क्रैक करना would have been very painful because you have to write down a lot of it. So I'll wait here for another 10-15 seconds, and अगर कुछ भी डाउट नहीं है यहाँ पे, then we will move on to the next set. All right. So let's move on to the next set then, if everything is clear. The next set was something that looked very difficult, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल इसको कोई भी ढांचे में डाल नहीं सकते, राइट. इट्स नॉट रियली समथिंग व्हिच इज इन अ सेट फॉर्मेट. इट इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट यू माइट हैव सीन अर्लियर. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट इट्स समथिंग न्यू. एंड व्हेन कैट यूज्ड टू हैव दीस काइंड ऑफ सेट्स, तो ये सेट एक टेस्ट में था जहां पे 8 सेट्स वे देयर टू बी सॉल्व्ड इन 1 आवर. तो 8 सेट के अंदर ये सेट पे बैठना और टाइम वेस्ट करना वुड हैव बीन थोड़ा फुलिश, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर केसेस, ओनली इफ यू आर डन विद द रिमेनिंग 6 और 7 सेट्स, तभी जाके मैं इसको देखूंगा. उसके पहले मैं शायद इसको देखूंगा भी नहीं, बिकॉज इट इज समथिंग न्यू दैट आई हैव टू लर्न. आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन हाउ टू सिलेक्ट the best questions or how to select questions properly for all three sections. So I'm going to make these videos. One of those videos is already done, so I think that should be up in the next couple of days, but I'm planning to do something on those lines. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स, तो एक कुछ हैप्पीनेस इंडेक्स लेके, there is some concept is computed on the basis of 3 parameters: social support S, freedom to life choices तो freedom F, and corruption perception C. ये 3 पैरामीटर्स पे हम बोल रहे हैं कि भाई मतलब ये कंट्री कितनी हैप्पी है. Each of these parameters is measured on a scale of 0 to 8 integers only. ठीक है, a country is then categorized based on the total score obtained by summing the scores of all the 3 parameters as shown in the following table. तो 0 to 4 अगर है तो वेरी अनहैप्पी, 5 to 8 है तो अनहैप्पी, 9 to 13 पे न्यूट्रल, 14 to 19 इज हैप्पी एंड 20 to 24 इज वेरी हैप्पी. ठीक है, तो दीज आर दी कैटेगरीज दैट एग्जिस्ट. Now we have been given some diagram जिसके अंदर हमको 10 countries के नाम दिए हुए हैं. Now again, the problem is if you get into the names of these countries, then you are going to end up in big trouble, because here are 10 terms, most of which you would not have heard earlier, right? So Amda, Benga, Kala, Delma, Eppa, Vasa, Wanga, Zanda, Yanga, Zuma, ये सब अगर नाम पढ़ते बैठेंगे तो one you will be amused and second you will be confused, right? So दोनों जगह पे there will be a problem because you will not know what to do with these names. तो फॉरगेट अबाउट दी नेम्स, लेट्स कॉल देम ए बी सी डी ई वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ठीक है, अभी के उसको ये रख देते हैं. नाउ वी हैव बीन टोल्ड कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्कोर्स का. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, अगर 1 में देखता हूं ना तो रेड रेड इज एफ. तो एफ के कॉन्टेक्स्ट में 1 कितनी बार दिया हुआ है, 1 हैज बीन गिवन ट्वाइस इन टर्म्स ऑफ एफ, विच बेसिकली मीन्स दैट ये जो 10 कंट्रीज है ना, उसमें से कोई तो 2 कंट्री को 1 पॉइंट मिला हुआ है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 पॉइंट अगर मैं एफ के लिए देखूं, ये 1 दिया हुआ है. व्हाट डज दिस मीन, देयर आर सम 2 कंट्रीज आउट ऑफ दीज 10 जिनको 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं. सॉरी, देयर इज 1 कंट्री आउट ऑफ दीज 10 जिसको 2 पॉइंट मिले हुए हैं. यहाँ पे 3 में 2 फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर सम 2 कंट्रीज आउट ऑफ दीज 10 हु हैव गॉट 3 पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम.
सिमिलरली 4 पॉइंट कितने को मिलेगा, एक ही कंट्री को 4 पॉइंट मिला हुआ है, 5 पॉइंट 3 कंट्री को मिले हुए हैं, 6 पॉइंट कोई भी कंट्री को नहीं मिला है, फ्रीडम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एफ हियर, and 7.1 country has got. No country has got 0 in terms of freedom out of these 10, and no country has got 8 out of these 10 in freedom. ठीक है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है A and C jointly have the lowest score of 7 with identical scores in all the three parameters. तो A and C को ना 7 पॉइंट्स मिले हुए हैं एंड ऑल पैरामीटर्स में सेम है, तो मतलब उनका हैप्पीनेस कुछ बहुत ज्यादा है नहीं ऑनेस्ट. Zuma has a total score of 17. So Zuma is a happy country actually, right? Yeah, happy. 14 to 19 is happy, 5 to 8 is unhappy. तो Zuma तो happy country हो गया. All three countries which are categorized as happy. तो तीन कंट्री को happy बोला गया है. Have the highest score in exactly one parameter. अब इतना ही डेटा दिया हुआ है, मेरे पास है 10 कंट्री, 10 कंट्री का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और फिर मेरे को कितने कंट्रीज के बारे में बताया हुआ है, ए सी जेड, ये तीन कंट्रीज का तो सीधा सीधा बताया हुआ है. एंड देन आई नो दैट 3 कंट्रीज आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, जिसमें से एक तो जुमा ही है. ठीक है, तो बाकी 2 कंट्री बची. तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी 5 कंट्री की. अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन 5 कंट्रीज की दी हुई है, तो मैं बाकी 5 कंट्रीज का करूंगा क्या, राइट? एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट सपोज टू डू एवरीथिंग बिफोर यू लुक एट द क्वेश्चंस. तो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं. यू माइट गेट सम स्पॉयलर्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, बट क्वेश्चंस देख लेते हैं. ए का स्कोर क्या था इन एफ, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ए का स्कोर पूछा गया है, और ए के बारे में कोई बताया भी है कि उसको 7 पॉइंट्स है करके. जेड का स्कोर पूछा है, बट जेड का 17 है, वो भी मेरे को पता है, तो उसको स्प्लिट करना है. बी एंड डी द 2 कंट्रीज दैट आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, तो जो थर्ड पॉइंट में 2 एक्स्ट्रा कंट्रीज थे आउटसाइड ऑफ ए सी एंड जेड, वो भी बताया गया है. एंड लास्ट में क्या बताया गया है, अगर बी ने 16 किया एंड डी ने 15 किया, तो 13 कितने लोगों को मिल सकता है. So now the questions become fairly straightforward. क्योंकि questions are asking only about these 5 countries. तो अगर क्वेश्चन भी 5 ही कंट्री के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ कंट्रीज वगैरह ऐसे सब क्वेश्चंस अगर पूछे हैं मुझे, तो व्हाई विल आई गो एंड सॉल्व द एंटायर थिंग बिफोर आई एंड अप एक्चुअली सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू राइट डाउन व्हाट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल, देन वी विल ट्राई टू सी कि ये 7 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देन वी विल सी 17 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं. उससे अपने को 2 क्वेश्चन के आंसर तो पक्का मिलने चाहिए, बिकॉज टीटा क्वेश्चन है, तो आई नो दैट देयर इज ओनली वन आंसर. नहीं तो मेरे को शायद एम्बिग्विटी होता, नन ऑफ दिस हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लाइक वी सॉ इन द प्रीवियस सेट. बट यहाँ पे तो वो एम्बिग्विटी है ही नहीं, आई नो एग्जैक्टली एक ही आंसर आने वाला है. तो आई टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड एटलीस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ए और जेड को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, अभी उसके पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अभी एस तो ये ब्लू वाला है, अब एस में 1 किसी को भी नहीं मिला है, 2 भी किसी को नहीं मिला है, 3 ना यहाँ पे 3 लोगों को मिला हुआ है इन एस. तो आई जस्ट राइट 3 थ्राइस हियर. ठीक है, तो सम कंट्री हैज गॉट 3, सम कंट्री हैज गॉट 3, सम कंट्री हैज गॉट 3. दिस इज नॉट कंट्री वाइज, दिस इज जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं टेबल में डाल रहा हूँ, क्योंकि दिस ग्राफ इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड. बार बार कहाँ देखते बैठो. ठीक है, अब 4 कितने लोगों को मिला है एस में, 4 3 लोगों को मिला है, तो यहाँ पे 4 3 लोगों को मिला है एस में. 5 जो है ना वो 2 लोगों को मिला है एस में, सो आई राइट 5 ट्वाइस. एंड 6 एक बार मिला है, तो आई राइट 6. एंड 7 एक कंट्री को मिला है, आई राइट 7 वंस. ठीक है, सिमिलरली आई कैन राइट इट फॉर एफ एज वेल. एफ रेड है, तो 1 2 बार आता है इसके अंदर, जो पहले भी देखा था. 2 एक बार आता है, 3 2 बार आता है, एंड 4 कम्स वंस, 5 कम्स थ्राइस, एंड 6 डज नॉट कम इवन वंस, 7 कम्स वंस. तो ये 10 हो गया यहाँ पे. एंड लास्ट वाला बचा सी. सी में 1 इज वंस, 2 कम्स थ्राइस, तो 2 3 बार लिखूंगा मैं. 3 कम्स 4 टाइम्स, तो आई राइट 1 2 3 4. एंड 4 कम्स वंस, 5 डज नॉट हैपन इन ग्रीन, एंड 6 हैपन्स वंस इन ग्रीन. ठीक है, तो ये अपना एक बहुत ही प्यारा सा टेबल बन जाएगा. आई जस्ट पुट इट इन दिस फॉर्म, राइट, सो दैट इट्स इजियर फॉर अस टू सी. नाउ आई नो कि ये टेबल बन गया है. नाउ व्हाट एल्स डू आई नीड टू डू, आई नीड टू फिगर आउट भाई ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, बिकॉज दैट इज बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स. लेट्स स्टार्ट विथ ए फर्स्ट. अभी ए और सी ना दोनों के पास 7 है. अब ए और सी दोनों को 7 में को बनाना है, 3 पैरामीटर्स को ऐड करके. अब 3 चीजों को ऐड करके मैं 7 कैसे बना सकता हूँ, राइट? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वन पैरामीटर कैन हैव? 5 हो सकता है क्या? 700 नहीं हो सकता, 610 नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो किसी को मिला ही नहीं ना, कोई भी पैरामीटर में जीरो दिया ही नहीं है किसी को भी. 520 नहीं हो सकता, 511, राइट? 511 इज पॉसिबल, सो लेट मी राइट 511 समवेयर. तो 7 को लिखने का एक तरीका है 511. ठीक है, तो मैं बोला 511 जो है वो एक तरीका है, विच बेसिकली मीन्स दैट ए को भी 511 मिला होगा, सी को भी 511 मिला. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. फाइन, इज दिस पॉसिबल? एक बार देख लेते हैं.
अगर 511 पॉसिबल है तो कैसे है? तो ए को मेरे को दो 5 देने हैं, मतलब कोई तो एक पैरामीटर में ना दो बार 5 आना चाहिए। तो एस के अंदर दो बार 5 आ रहा है, तो वी कैन गिव दिस टू ए एंड सी, राइट? इसके अंदर भी दो बार 3 बार 5 आ रहा है, तो दो बार तो दे ही सकते हैं। वन कैन गो टू ए, वन कैन गो टू सी, परफेक्ट। तो इधर ऑफ दीज कैन बी ये 5 वाला पैरामीटर। बट मेरे को दो पैरामीटर चाहिए जिसमें दो बार 1 आ रहे हैं। अब यहाँ पे तो 1 बिल्कुल भी किसी को नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दो वंस दिए हुए हैं, सो दिस कुड बी एफ। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही 1 है, right? So I cannot have four ones that I can distribute because I have only three ones in this entire table. ठीक है? And because I have only three ones in this entire table and according to this distribution I am supposed to give four ones, this distribution is not right. तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से। I'll just remove it from the slide. ठीक है? तो यहाँ पे मैं पूरा ही निकाल देता हूँ। ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे को 511 जो है ना वो मेरे लिए अलाउड नहीं। So 511 was not allowed. 5 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। नाउ लेट्स गो टू 2, लेट्स गो टू 4, सॉरी 430 इज नॉट अलाउड। 421 अलाउ कर सकते हैं। अगेन लेट्स लुक एट द सेम लॉजिक। मेरे को दो 4 चाहिए, दो 2 चाहिए और दो 1 चाहिए। मेरे को दो 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, मेरे को 4 यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। तो ये जो दो 4 होंगे ना वो एस में ही में होने चाहिए। सो एस विल हैव टू बी द वन जहां से दो 4 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, वन फॉर ए, वन फॉर सी। अब इसके अलावा मेरे को दो 2 वाला कोई तो एक पैरामीटर चाहिए। अब वो यहाँ पे तो एक ही 2 है मेरे पास। सो बेसिकली सी बिकम्स द वन जहां से 2 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। एंड 1 जो है ना वो मेरे को दो चाहिए फ्रॉम एफ, विच इज अगेन पॉसिबल, राइट? तो एस सी एफ में से 4 to 1 इज पॉसिबल, तो दिस इज फाइन, राइट? 4 के तौर पे कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। 3 के साथ क्या होगा? 3 के साथ इधर यू विल हैव 331, राइट? तो ये भी एक बार देख ले 331 पॉसिबल है कि नहीं। सो आई जस्ट रिमूव ये वाला पार्ट, सॉरी आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट। सो आई नीड 331 नाउ, राइट? तो आई नीड सम पैरामीटर जिसमें से मेरे को दो 3 मिलने चाहिए। तो दो 3 तो मेरे को यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, राइट? तो मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे था? दो 1 चाहिए मेरे को। नाउ दो 1s कैन कम ओनली फ्रॉम एफ, सो टू 1s विल कम ओनली फ्रॉम एफ। और जो दो 3 है ना वो एस से भी दो 3 मेरे को इजीली मिल जाएंगे और सी से भी दो 3 मिल जाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू लुक एट एनीथिंग एल्स। ठीक है? तो एस सी एफ अगर मैं फिर से देखता हूँ तो 331 इज पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या करेंगे? 331 तो हो गया, अब बचा मेरे पास 322। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 3 निकाल देंगे तो 4 बचेगा ना मेरे पास। तो 322 देख लेते हैं। तो मेरे को एक कोई तो जगह से दो 3 लगेंगे और कोई तो एक जगह से दो 2 लगेंगे और कोई तो एक और जगह से दो 2 लगेंगे। सो आई बेसिकली नीड फोर टूस, टू फ्रॉम ईच कॉलम। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना इधर 2 है ही नहीं बिल्कुल भी, इधर एक ही 2 है और यहाँ पे 3 2s हैं। बट मेरे को दो 2 चाहिए ना दो कॉलम में, तो आई नीड टू हैव टू 2s हियर और हियर, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस केस इज ऑल्सो आउट, सिमिलर टू हाउ वी रिड्यूस्ड दिस केस। ठीक है? इसके बाद और क्या कर सकते हैं? 2 में अगर आ जाता है ना तो 2 + 2 + 2 6 बन जाता है मैक्सिमम, तो 7 तो उससे बना ही नहीं सकते, राइट? सो दीज आर दी ओनली टू केसेस दैट एग्जिस्ट, या तो 421 होगा या तो 331 होगा। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू? व्हाट वाज ए स्कोर इन एफ? अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो ए का स्कोर एफ में 1 आता है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो भी ए का स्कोर एफ में 1 आता है। एंड दैट्स व्हाई ईदर ऑफ दोस टू केसेस इफ यू गो फॉर, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू से दैट ए का स्कोर इन एफ इज गोइंग टू बी 1 फॉर श्योर, क्योंकि और कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं कर। सो दिस इज बेसिकली द लीप ऑफ फेथ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। Fine. So in this case, A ka score in F can be 1 irrespective of whether it is that 331 thing or 421 thing. Right? 331 या 421 में से जो भी आएगा F के कॉन्टेक्स्ट में 1 ही होना चाहिए, बाकी कहीं पे दो 1s तो कंट्रीब्यूट हो ही नहीं रहे। Fine. So that is what gives you the answer to this one. Now next one में जूमा का पूछा गया है, तो z का क्या पूछा है? z को s में कितना मिला वो पूछा हुआ है। नाउ यू कैन बी अश्योर्ड दैट भाई जो ये क्या था वही वहां पे करेंगे तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। नाउ आई हैव टू मेक 17 इन दिस केस। ठीक है? 17 कैसे बनाएंगे? अब 17 तो बहुत बड़ा नंबर आ गया ना मेरे पास, तो 17 मेरा यहाँ बॉटम से बनेगा, अब मेरे को टॉप में देखने की कोई जरूरत नहीं। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑल्सो रिमूव द टॉप फ्रॉम बोथ द ये फ्रॉम दिस स्लाइड, तो जरूरत। नाउ आई हैव टू मेक 17। आई ऑल्सो नो दैट जूमा बेचारा हैप्पी कंट्री। ठीक है? अब ये जूमा हैप्पी कंट्री कैसे बन गया? जूमा हैप्पी कंट्री होने के लिए जो 3 कंट्रीज हैं हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली वन पैरामीटर, ईच ऑफ दोस 3 कंट्रीज। मतलब एक कंट्री को एस में हाईएस्ट स्कोर मिला है, एक कंट्री को एफ में हाईएस्ट स्कोर मिला है एंड एक कंट्री को सी में हाईएस्ट स्कोर मिला है। तो सम कंट्री हैज गॉट द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इन एस, दैट इज 7,
some country has got the highest possible score in F, that is again 7, and some other third country has got the highest possible score in C, that is 6. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एक छोटा सा टेबल अपना बन जाएगा. फाइन. एंड दिस हैज टू बी ट्रू, मतलब ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, 7 7 6 आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो ये बनेगा है. नाउ जुमा हैज अ स्कोर ऑफ 17, तो या तो उसको एस में 7 लेके 17 बनाना पड़ेगा, या तो एफ में 7 लेके 17 बनाना पड़ेगा, या तो सी में 6 लेके 17 बनाना पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ जुमा हैड अ स्कोर ऑफ 7 इन एस. अगर उसको 7 एस में होता ना, तो वो ये और ये तो यूज कर ही नहीं सकता जुमा. तो आई जस्ट पुट इट इन सम अदर कलर, आई यूज दिस. ठीक है, तो अगर जुमा यहाँ पे 7 है जुमा के पास, अगर जुमा के पास इधर 7 है, the best thing it can do is it can take 5 from here, 4 from here, that kind of a thing. उसको बनाने का है 17, तो 7 क्या है, उसको 10 बनाना है ना. तो आउटसाइड ऑफ दिस कॉलम इट हैज टू यूज दीज नंबर्स सारे के सारे एंड मेक अ 10. बट द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इज 5 प्लस 4, दैट इज 9. तो 10 तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई जुमा कैन नॉट बी द वन विद 17. तो ये वाला जो रो है ना, वो 17 कभी भी नहीं हो सकता. वट एवर इट इज नेवर बी इक्वल टू 17. ठीक है, सो विल रिमूव दिस वन. जुमा कैन नॉट बी दिस. फाइन, ये नहीं हो सकता जुमा. Now let's look at the other one. The other one says that f has 7. अगर जुमा ये वाला है और जुमा को इसमें 7 मिलता है, तो बाकी दोनों में मिलकर उसको 10 होना चाहिए. And there is only one way to get a 10 here. You get a 6 from this block and you get a 4 from this block. तो ही तुम्हारा 10 बनेगा, 10 बनेगा और ओवरऑल 17 बनेगा. नहीं तो बनेगा ही नहीं. So one way of doing this is I just put it in some other color. I'll put it in green, और जो भी greenish bluish color, green color. ये 6 और ये 4 बन जाता है, तो ये 17 मेरा बन जाएगा. So this is fine. Zuma can be this. Okay, so this is fine. थर्ड क्या बोल रहे हैं हम लोग, 17 बनाने का है मेरे को जुमा, एंड अगेन 6 कुड बी अ पॉसिबिलिटी. अभी अगर मैं 6 को देखता हूं यहाँ पे, 6 के साथ मेरे को 11 लगेगा. 11 कैसे बना सकता हूँ, ये दो में से मेरे को 6 और 5 ही लेना पड़ेगा ना, बिकॉज एज आई गो लोअर इट विल नेवर एड अप टू 11. सो टू मेक 11 आई हैव टू टेक द टू लार्जेस्ट रिमेनिंग नंबर्स फ्रॉम दीज टू कॉलम्स. तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6, 5 और 6 से मेरा बनेगा 17. सो अगेन जुमा इज पॉसिबल. नाउ जुमा के केस में क्या पूछा गया अपने को, जुमा का स्कोर एस में क्या था ये पूछा हुआ है. अब दो ही केसेस पॉसिबल हैं, 6 7 4 और 6 5 6, बट दोनों ही केसेस के अंदर एस इज 6. तो वट एवर हैपेंस इन केस ऑफ जुमा, डेफिनेटली जुमा का स्कोर इन एस will have to be 6. So the correct answer to question number 2 in this particular set is going to be 6. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ. अभी तक तो मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था. देन इट माइट बिकम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यू हैव टू again keep a lot of stuff in your head, but manageable sets. ठीक है, you go to the next one. Now B and D are two countries that are categorized as happy. Now they are tied with the same score. What is the maximum score that they can have? तो यहाँ पे मेरे को ये पता था कि भाई Z का स्कोर जो है ना वो तो 17 है, ये तो मेरे को पता है. अब यहाँ पे S F C है, and I also know that one country has got the highest in this, one country has got the highest in this, one country has got the highest in this. ये पता है मेरे को. मेरे को ये भी पता है कि भाई Z दो तरीके से 17 बना सकता हूं मैं. या तो ये एक केस बनेगा, या तो आई जस्ट राइट इट हियर एंड आई होप दिस इज विजिबल. 7 7 एंड 6. ठीक है, लेट मी जस्ट चेक इफ दिस इज विजिबल. या थैंकफुली इट इज विजिबल. तो ये 7 7 6 दो केसेस बनेंगे. एक केस में ना हम लोग इसको 17 बना देते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी मेड दिस 17. 6 7 4 एंड 6 5 6, राइट. So 6 7 4 and 6 5 6. तो Z is either this और Z is this. ये मेरे को पता है. ठीक है, अब बाकी दोनों को मेरे को मैक्सिमाइज करने का है. अब ये वाले केस को अगर मैं देखता हूं 6 7 और 4, तो यहाँ पे 6 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 7 इधर अवेलेबल नहीं है, 4 यहाँ पे अवेलेबल नहीं. ठीक है, so these are not available. Also, I know that if I'm looking at this one, I cannot choose 6, and if I'm looking at this one, I cannot choose this 7. क्योंकि highest तो मैं दो ले नहीं सकता ना, highest एक ही आना चाहिए whatever happens. So in this particular case, now if I want to maximize this, अब ये अगर 17 है, let's see what is the maximum that this can be. ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, ये 7 अगर मैं लेता हूं, इसमें से मैक्सिमम 5 में उठा सकता हूं, और इसमें से मैक्सिमम मैं 3 उठा सकता हूं. सो ये तो 7 प्लस 5 12 प्लस 15 ही बना ना. So this can be 15 at most in this particular case, right? यहाँ पे अगर मैं देखता हूं इसको, तो क्या होगा, अब ये 17 है, ये 15 है, right? तो ये दोनों 15 हो सकते हैं, is what I can say. यहाँ पे अगर इसको देखता हूं मैं, let's say for example,
ये 6 है इधर, ठीक है। अभी फॉरगेट अबाउट दिस दैट आई हैव मार्क्ड हियर, तो ये और ये हटा देते हैं। लेट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस 6 वाला रो नाउ, लेट्स सी। तो अगर मैं इसको 6 को ले लेता हूं तो मैक्सिमम क्या बनेगा, ये 6, ये 5 और ये 5 बनेगा। तो 5 प्लस 6 विल गिव अस 16। तो इसका मैक्स इज 16, ये मैक्स 16 है, ये मैक्स 15 है, राइट। सो बेसिकली आई शुड बी एबल टू मेक टू 15। अब इसको भी अगर मैं 15 बना तो आई शुड बी एबल टू, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू मेक 15 और नॉट, राइट। बट ये केस के अंदर मेरा मिनिमम 15 आ जाता है, मैक्सिमम 15 आता है, जो ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि 16 इसमें पॉसिबल है बट ऊपर वाले में पॉसिबल नहीं है। अभी इसको अगर मैं 15 बनाता हूं, लेट्स से, हाउ वाज आई सपोज टू मेक 15 आउट ऑफ दिस, आई जस्ट इरेज दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। हाउ वाज आई सपोज टू मेक 15 आउट ऑफ दिस, मैंने ये 7 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो मेरा बन गया 15। अभी अगर मेरे को इसको 15 बनाना है तो मैंने 6 यहाँ पे ले लिया, आई जस्ट पुट अ स्क्वायर हियर इंस्टेड, एंड मेरे को 9 चाहिए। 9 कैसे बनाऊंगा, आई टेक अ 5 फ्रॉम हियर, आई टेक अ 4 फ्रॉम हियर, 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15, 16 चाहिए ना, सॉरी। सो आई विल बी एबल टू मेक, sorry, I'll be able to make a 16 using this 6 plus 5 plus 5। तो मेरे को यहाँ से ये 15 मिल गया, सॉरी, और यहाँ से मेरे को 6 प्लस 5 11 एंड 4, लेट्स, ठीक है, 15 बनाता है। आई मेड 16, सो सॉरी, या 15 आई कैन इजीली मेक, बट दो 16 तो मैं बना ही नहीं सकता, बट दो 15 मैं बना सकता हूँ। तो 15 कुड बी माय आंसर इफ आई गो फॉर दिस केस। तो ये वाले केस के अंदर ना मैक्सिमम मेरे को दोनों 15 पे लेके आने पड़ेंगे। आई कैन नॉट हैव बोथ ऑफ देम एट 16। लेट्स लुक एट दिस केस एंड लेट्स सी दोनों का मैक्स वैल्यू क्या आता है। So in this case, 6 5 6 है, again let me erase everything from this। I hope the first part is clear. If not, you can go back and check it once। नहीं समझ में आया तो please let me know, I'll try to explain to you in simpler terms। but यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 5 6 है, तो this is not available, this is not available and this is not available। अभी मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये वाले को अगर मैं ये 7 लेता हूं ना, तो मैं मैक्सिमम इधर 5 ले सकता हूं, मैं मैक्सिमम इधर 4 ले सकता हूं। 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16, तो इसका मैक्स 16 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखता हूं, ये वाले 7 को देखता हूं, बीच वाले 7 को देखता हूं, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज एन अनलाइन सेट। आई कैन डू दिस हियर नाइसली, बट ड्यूरिंग द टेस्ट यू माइट नॉट हैव बीन एबल। ये 7 यहाँ पे ले लेता हूं मैं, ये 5 यहाँ पे ले लेता हूं मैं, और ये 4 यहाँ पे ले लेता हूं। तो अगेन मैक्सिमम कितना आएगा, 5 प्लस 7 12 प्लस 4 16, यहाँ पे मैक्स 16 आता है, ठीक है। बट द फनी थिंग इज 16 बनता कैसे है, अगर मैंने इसको 16 बनाया लेट्स से, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ये 7 ये 5 और ये मैक्सिमम 3 बचा मेरे पास, तो फिर तो ये 15 बन गया, राइट। सो बोथ ऑफ देम कैन साइमल्टेनियसली नॉट बी इक्वल टू 16, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो यहाँ पे ऑल्दो इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 16, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 16, बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी 16, बट दे कैन बी साइमल्टेनियसली 15, जो मेरे को यहाँ पे ही केस मिल गया है, राइट। सो आई कैन से दैट अगर ये वाला कंडीशन, आई एम सो सॉरी, अगर ये वाला कंडीशन यहाँ पे है, both of them are categorized as happy and are tied with the same total score, 17 is definitely not possible, 16 is not possible, 15 is possible। So the maximum score that both of them can have is going to be 15, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में वी आर सेइंग दैट इफ बेंगा स्कोर्स 16 एंड डेल्मा स्कोर्स 15, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13, ये अपने को पूछा गया है। सो मैक्सिमम कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13 इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इफ बेंगा इज 16 एंड डेल्मा इज 15, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों 16 नहीं थे, यहाँ पे दोनों 16 नहीं थे, तो एक को 16 बनाएंगे, एक को 15 बनाएंगे, एंड वी शुड बी फाइन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, विल कीप द टेबल्स एज इट इज, क्योंकि टेबल्स अपने लिए हेल्पफुल होंगे यहाँ पे। आई जस्ट रिमूव ये वाला पार्ट, आई रिमूव दिस पार्ट, एंड आई रिमूव दिस पार्ट, आई रिमूव जेड, वहां पे होना चाहिए, ठीक है, जेड डजंट मैटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने को पता है कि, या सॉरी, दिस इज जेड, फाइन। तो ये 17 मेरे को पता है करके। नाउ वन ऑफ दीस हैज टू बी 16, वन ऑफ दीस हैज टू बी 15। अगर मैं किसको 16 मान देता हूँ, किसको 15 मान देता हूँ, दोनों केस में मेरे को देखना पड़ेगा। तो अभी ये वाले केस में अगेन 6 7 4 इज टेकन, तो 6 इज टेकन, 7 इज टेकन, 4 इज टेकन। अभी 7 के साथ मैं मैक्सिमम क्या बना सकता हूँ, 7 प्लस 5 प्लस 3, यही मैक्सिमम मैं बना सकता हूँ। आई कांट चूज दिस 6, रिमेंबर, राइट, बिकॉज आई कैनॉट हैव टू पैरामीटर्स में हाईएस्ट। तो 7 5 3 मतलब यहाँ पे मेरे को इसको ही 15 बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसको 16 बना ही नहीं सकता। सो दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 3। तो यहाँ पे ये 7 चला जाता है, ये 5 चला जाता है, ये 3 चला जाता है,
ठीक है। अभी 6 को ना मेरे को 16 बनाना है, तो ये 15 वाला है और ये 16 वाला टाउन है, मेरे को पता कंट्री में। तो अब ये 6 है ना, इसको 10 मेरे को ऐड करना है। 10 कैसे ऐड करूंगा? आई हैव ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। आई विल टेक अ 5 फ्रॉम हियर, आई विल टेक अ 5 फ्रॉम हियर, तभी मेरे पास 10 बनेगा। क्योंकि जैसे ही मैं कम करूंगा इसे, वो 10 से नीचे चला जाएगा मेरा सम, राइट? सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट एक्सिस्ट्स। अभी मेरे को 13 बनाना है फ्रॉम द रिमेनिंग थिंग्स। मैं 13 कैसे बना सकता हूँ? ओनली इफ आई टेक द हाईएस्ट फ्रॉम हियर एंड हाईएस्ट फ्रॉम हियर ऑफ द रिमेनिंग थिंग्स, आई विल बी एबल टू मेक 113। उसके बाद तो मैं 13 बना ही नहीं सकता ना, 12 भी नहीं बना सकता। So there is only one more 13 that will exist in this particular case. ठीक है, तो ये केस में after I have removed all these, there will be only 113 that will be possible. Now I'll again erase ये वाला part. We'll go to the second case and we will see what happens there. ठीक है, so सेकेंड केस में अगर मैं जाता हूं यहाँ पे 6 5 6 है, तो ये 6 इज नॉट अलाउड, दिस 5 इज नॉट अलाउड एंड दिस 6 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है, 6 5 6 अलाउड नहीं है, राइट? नाउ आई नीड टू मेक अ 15 एंड आई नीड टू मेक अ 16। अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 7 + 5 + 4 पॉसिबल है, तो यहाँ पे 16 इज पॉसिबल फॉर दिस वन। यहाँ पे भी 7 + 5 + 4 16 इज पॉसिबल फॉर दिस वन। तो दोनों भी केसेस में मेरे को 16 पॉसिबल है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट 16 बनाने के लिए ना मेरे को एक 7 है और एक 5 लेना ही पड़ेगा, तो ये 4 लगेगा। तो हुएवर इज गेटिंग दैट 16 ना इज गोइंग टू गेट दैट 4। ठीक है, दोनों में से किसी को भी मैं 16 दे सकता हूँ, बट उसको 4 देना जरूरी है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई गिव दी 16 टू दिस पर्सन, तो इसका 7 चला जाएगा, इसका 5 12 और ये 4 बन के 16 बन जाएगा, ये 5 और 4। नाउ ये 4 आई कांट यूज, तो मेरे को 15 बनाने का है। 15 कैसे बनाऊंगा? आई विल हैव टू टेक अ 7 फ्रॉम हियर, आई विल हैव टू टेक अ 5 फ्रॉम हियर एंड आई विल हैव टू टेक अ 3 फ्रॉम हियर। अगेन वी हैव अराइव्ड एट द सेम पोजीशन 5 7 एंड 3, एंड अगेन मैंने ये सबको उड़ा दिया यहाँ से। मेरे को फिर से 13 बनाने का है, कैसे बनाऊंगा? 5 5 3। So again there is only one way that I can make a 13. So irrespective of the case that I am going for, I'll be able to make only one country with a score of 13 if Benga has 16 and Delma has 15. ठीक है, अब Benga 16 Delma 16 in the second case it didn't matter ये 16 कौन सा है 15 कौन सा है। The thing that mattered was जैसे मेरे को 16 बनाने का है ना, मेरे को 4 डालना बहुत जरूरी है। अगर मैं 4 नहीं डालूंगा तो 16 बनेगा, and that was basically the problem, right? So that was basically the set. This was the difficult one. The AI BI was familiar but slightly difficult because there were a lot of variables and बहुत सारा डायग्राम निकालना पड़ता। At some point in time you might have felt during the test यार कहीं पे कुछ क्राइटेरिया मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना करके, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है उसके अंदर, एवरीथिंग इज वेरिएबल। ठीक है, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट सेट व्हिच मेड इट स्लाइटली डिफिकल्ट। ये वाला सेट जो था ना उसमें डेटा ही नहीं था, देयर वर ओनली 2 डेटा पॉइंट्स, एक 7 और एक 17। इसमें लीप ऑफ फेथ लेके फर्स्ट 2 क्वेश्चन बन सकते थे अगर लीप ऑफ फेथ लेते तो, राइट? बट देन अगेन इट्स अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। Sometimes it just strikes you, sometimes it doesn't strike you at all, and then मतलब doing taking that leap of faith and sticking to this set becomes very difficult. तो पहले दो तो इसमें बन जाते for sure, third and fourth would have been difficult. When I saw this set for the first time I was definitely going to skip this one, तो मैं तो definitely इसके अंदर नहीं घुसता। AI BI वाला I would have still managed। ठीक है, during the actual test I managed AI BI properly। इसके अंदर I could manage only the first question। तो फर्स्ट में मैंने 4 to 1 सोच के चला कि 7 को स्प्लिट करने का एक ही तरीका है, बिकॉज आई एम वेल वर्स्ड विद काकुरो। आई थॉट दैट 7 को स्प्लिट करने का शायद एक ही तरीका होगा, 4 to 1। आई माइट बी मिसिंग समथिंग बट दैट मस्ट बी दी वन, एंड बिकॉज उसमें 1 आता है दैट इज माई आंसर। दैट इज व्हाट आई थॉट एंड वेट, एंड दैट वाज राइट। सेकंड आंसर में आई कुडंट फिगर इट आउट एंड वहां पे मेरा गलत हो गया, राइट? बट आई वाज एबल टू गेट 1 out of 4 इन दिस पर्टिकुलर सेट इन द एक्चुअल टेस्ट, राइट? सो दोनों में से दोनों क्वेश्चंस मैनेजेबल थे, बट यू हैव टू बी लाइक रियली ब्रिलियंट विद डेटा। यू हैव टू रीड दिस सेट वेरी केयरफुली, बहुत टाइम देके इसको पढ़ना पड़ता, तो ही शायद ये बन जाता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर टेस्ट, considering that you had 20 minutes to solve these two sets, I would have been very happy if you would have solved only one set। अगर फर्स्ट सेट भी ठीक से कर लेते ना, क्योंकि वो दैट वाज अ फेमिलियर सेट, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। इसमें अगर 12 मार्क भी आपको मिल जाएंगे ना, आई थिंक इट्स अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड इफ यू हैव गॉट एनीथिंग अबाउट 12, आई थिंक यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। यू डिजर्व far better things in life, and I'm sure you are going to do well at the actual test as well, right? Considering chat may I have got no questions as such, I'm assuming that you have understood whatever we learned today। in case आगे जाके कुछ याद आता है या कुछ समझ में नहीं आता, please let me know in the comment section once the video is up। The video should be up tomorrow as a recording। So let me know in the comment section in case you are not able to figure something out, and I try to address that particular query। But again, very beautiful sets, two of the most beautiful sets that I have seen at the CAT, and yeah, it was a very nice
thing to solve these two particular sets. Okay, so I'll see you again tomorrow. The sets for tomorrow will be live at 10 o'clock today. So make sure that you are having a look at that. Tomorrow we are going to have another session on DI again. So the seventh day is also going to be DI, and then the eighth day is going to be verbal ability, then algebra, and then arithmetic. Okay. So tomorrow also we are going to continue with DI. So make sure you are taking the test, and then you turn up for the session, and then we will be discussing those two sets that we will have for tomorrow. Okay. So take care, everyone. Have a great evening ahead of you, and thanks for turning up for the session. Make sure that you do the sets for tomorrow and you turn up